ठीक है. If you look at this question, यहाँ पे what are the forces given to us? First step is draw FBD, right? पहले FBD बना लेते हैं. तो we have 50 weight, है ना? mg downwards, correct? And then you got normal reaction like this. And इन्होंने एक force दिया अपने को ऐसे, which is 20√2 at 45. Now हमको पता है कि we have to take x-axis along the incline and y-axis perpendicular to it, because the reason being कि acceleration will be like this. Do you agree? है ना? But तो we have got the FBD, normal reaction है, यहाँ पे external force दिया है अपने को, और there can weight also, and we know that this angle is, if this is 53, this would be 53, correct? है ना? What is the next step? Resolve the forces which are not on x and y. ठीक है, ये वाला force ऐसे बीच में है तो इसको resolve करना पड़ेगा. तो क्या आएगा इसका आंसर if I resolve this? ये वाला towards the angle cos component it will be 20, isn't it? 20√2 into 1/√2, and away from the angle sin component this will be again 20 only. ठीक है. Similarly, this will be towards the angle cos component. This is 20 cos 53. What is cos 53? 3/5. ठीक है. So you have 30 here, isn't it? Okay. And away from the angle sin component, this will be 4/5, which will be 40. So now the new, if I have to redraw them, तो diagram looks like this. यहाँ पे हमारे पास 30 है, यहाँ पे हमारे पास 40 है, और ये वाला force is 20 like this. There is a force like this 20, correct? And then there is normal reaction like this. N. Any other forces? I think we have covered pretty much everything. And this is your A. सही है ना? What is the next step? क्या है next step? Sum of all forces along x will give you acceleration on the x-axis, isn't it? कर लेते हैं. ठीक है. तो you know that summation of fx is mass into acceleration along x-axis. x में कितने force है? 2, right? 40 plus 20 along the acceleration I'm taking as positive. Okay, is equal to mass. Mass is how much? 5, है ना? Into acceleration is a along x-axis. इस axis पे जो है a है, that is acceleration is a only. तो a का वैल्यू कितना मिलेगा? 60/5, 12 it is. How about y? Summation of y forces will give you mass into acceleration along y. Fy की वैल्यू कितनी है? कितने फोर्स है भाई y एक्सिस पे? 1 2 3 3 फोर्सेस, राइट? n is upwards, बाकी दोनों डाउनवर्ड्स है, तो ऐसे n positive -20 -30 is equal to mass into acceleration minus 5. There is no acceleration on the y axis, so I can write n as 50. I hope everyone got this. Easy है ना? ठीक है. थोड़ा और देखते हैं अच्छे सम्स. मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज. ओके, तो यहाँ पे कैसे दिया है? देखो ऐसा कुछ सम दिया हमको, बोला है कि लेट्स से वी हैव एक ब्लॉक ये है, ठीक है, देयर इज वन मोर ब्लॉक लाइक दिस, वी हैव 2 ब्लॉक्स. थोड़ा पास में रहते हैं. ओके, लेट्स से इसका वेट कुछ तो दिया हमको. लेट्स से दे हैव गिवन दिस एज 5 kg and this is some 3 kg. ओके, एंड वी आर पुशिंग देम विद अ फोर्स. ये वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे, and let's say that force is some 160 newtons. ऐसे कोई तो फोर्स दे दिया हमको, ठीक है. now what will happen? see, ठीक है, हमने पुश किसको किया? 5 kg को, ठीक है. ओके, और बट 5 kg को पुश किया तो सिर्फ 5 kg मूव होगा कि 3 kg मूव होगा साथ में? 3 kg मूव होना पड़ेगा, राइट? बिकॉज व्हेन यू पुश 5 kg, 5 kg विल पुश 3 kg, isn't it? बराबर. एंड देन they will have to move together. ऐसा नहीं है कि अलग अलग जा सकते हैं लोग, है ना? 5 kg और 3 kg का एक्सेलेरेशन अलग अलग रहेगा कि सेम रहेगा? सेम ही रहेगा, बिकॉज अगर ये आगे जा रहा है तो इसको भी लेके जाएगा साथ में, ठीक है. they will have to move together. is making sense? ठीक है, क्योंकि इसको पुश करेंगे तो ये भी आगे पुश हो जाएगा. तो जो भी एक्सेलरेशन है, जो भी इसका अगर एक्सेलरेशन 5 है तो इसका भी 5 ही होना चाहिए. दोनों को सेम एक्सेलरेशन से ऐसे आगे जाना होगा. डू यू एग्री? ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने हमको? क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड the normal reaction exerted by 5 kg on 3 kg. because what is happening is 5 kg is pushing the 3 kg, right? तो 5 kg 3 kg को पुश कर रहा है, मतलब पुश कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है. समझ में आ रहा है क्या? टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन by 5 kg block on
3 kg block. That's the question given to you. समझ में आया क्वेश्चन क्या है? ठीक है. Now you should understand कि जब भी फिजिक्स में ऐसा होता है कि सिस्टम साथ में चल रहा है, सिस्टम इज मूविंग टुगेदर, तो इट मेक्स सेंस टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम फर्स्ट. समझा? बिकॉज दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, सिस्टम साथ में जाने वाला है. ठीक है. इट मेक्स सेंस टू फाइंड एक्सेलरेशन फर्स्ट. तो जनरली हम ऐसे ही करते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हियर is we know that since system, if I take them as system, okay, both of the block as one system is moving together, okay, find its acceleration first, और कैसे ढूंढेंगे इसको क्या करेंगे? एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए हम इसको एक सिंगल ब्लॉक लेंगे, considering them as a single block. इसको एक सिंगल ब्लॉक की तरह एज्यूम करके एक्सेलरेशन निकाल लो. मतलब मैं ऐसे एज्यूम करूंगा, ये पूरा का पूरा एक सिंगल ब्लॉक है 8 kg का, ओके, और इसको हम पुश कर रहे हैं यहां से 160 से. समझ आएगा? ओके. नाउ इसका एक्सेलरेशन ले लेंगे हम a. ठीक, a. ओके. नाउ यू कैन फाइंड दिस एक्सेलरेशन, राइट? सिंपल. एक्स एक्सिस पे कितना फोर्स है? सिर्फ और सिर्फ एक. ठीक है. तो वी कैन राइट summation of force on the x, which is 160, is equal to what? Mass into acceleration. What do I get? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये जो a मिला है अपने को, ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम ही होने वाला है. समझ में आया? बिकॉज जो एक्सेलरेशन इसका है वही इसका, बिकॉज दे आर मूविंग टुगेदर. इज मेकिंग सेंस. नाउ द सेकंड स्टेप वुड बी, you can take any one FBD, take FBD of anyone to find n नॉर्मल रिएक्शन के लिए. तो देखो यहाँ पे FBD कैसे बनेगा. ठीक है. सी इफ यू लुक एट दिस, क्या हो रहा है? ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, राइट? तो इफ आई हैव टू ड्रॉ द FBD, आई थिंक इट शुड लुक लाइक दिस. अलग अलग FBD बनाना है. ठीक है. तो ये हमारा 5 kg ब्लॉक है, ये हमारा 3 kg ब्लॉक है. ठीक है. 3 kg पे क्या फोर्स लग रहा है? ये वाला इसको यहाँ पुश कर रहा है ऐसे. लेट्स कॉल इसको n. ओके. ग्रेविटी भी है यहाँ पे, मैंने बनाया नहीं है वो. इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दैट आल्सो. ठीक है. यू मस्ट नो दैट कि यहाँ पे बाकी फोर्सेस भी है. ठीक है. ऐसा काम नहीं है मुझे, इसलिए मैंने नहीं बनाया. ठीक है. ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नॉर्मल डायरेक्शन एक्टिंग अपवर्ड. ठीक है. इसको हम बोल सकते हैं 30 एंड दिस इज एक्चुअली n1. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड ऑन द 3 kg. ठीक है. एंड दिस 3 kg इज मूविंग लाइक दिस विद एक्सेलरेशन a. वो ये हमने निकाला है अभी 20. ओके. अच्छा, 5 kg ने 3 kg को पुश किया, तो 3 kg को वापस पुश करेगा, बिकॉज रिमेंबर नॉर्मल रिएक्शन इज एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि इसको यहाँ पुश किया तो ये यहाँ पुश हो जाएगा विद द सेम नॉर्मल रिएक्शन. तो 5 kg को भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है. ठीक है. जो 5 kg ने n 3 kg को दिया वो उसको वापस भी मिल जाएगा, राइट? है ना? तो ये n ऐसे लग रहा है, प्लस हमने यहाँ पे फोर्स लगाया 160. करेक्ट. ठीक है. इफ यू वांट टू ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ द अदर फोर्सेस आल्सो. ठीक है. जो बाकी फोर्स है वो बना सकते हो. यहाँ पे ये 50 and this is normal reaction by the ground on the block, which is, let's say, some n2, and we know that this block is also moving with acceleration a and a का value is 20. ये है हमारा FBD प्रॉपर. समझ आया क्या? देखो कैसे बनाया है, सारे फोर्सेस बना के दिखाया है. ठीक है. अच्छा, फॉर नाउ आई एम लुकिंग ओनली फॉर व्हाट विच वैल्यू. मुझे सिर्फ n चाहिए. ठीक है. तो मैं किसी भी एक FBD को ले लूंगा. यू कैन टेक दिस आल्सो एंड दिस आल्सो. आई थिंक दिस वन इज इजी. ओके. बिकॉज x पे यहाँ पे कितना फोर्स है? सिर्फ और सिर्फ एक. ठीक है. तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखना है तो आई विल राइट n सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द x एक्सिस इज n इज इक्वल टू फोर्स. लेफ्ट में सिर्फ फोर्स आएगा, राइट में मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास इज 3 kg इनटू एक्सेलरेशन इज हाउ मच? वी गॉट ना अभी 20. तो आंसर कितना आया? 60. समझ आया क्या? ओके. अगर तुम ये ना लेके ये लेते, इफ यू टेक दिस FBD आल्सो, यू गेट द सेम आंसर. देख लो. ठीक है. कितने फोर्स ऑन द x एक्सिस? 2 फोर्सेस, राइट? ठीक है. 160 हमेशा a के अराउंड वाले को मैं पॉजिटिव लेता हूँ. तो 160 पॉजिटिव माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज 5, एक्सेलरेशन हाउ मच? a का वैल्यू पता है ना अपने को, 20. ठीक है. तो यू गेट n का वैल्यू इज व्हाट? 160 माइनस 100. क्या आंसर सेम ही आएगा? सेम ही आएगा. ये ले लो या ये ले लो. ऑब्वियसली दिस इज इजियर व्हेन यू लुक एट इट ऐसे, बट बाकी कुछ एक ही बात है. मतलब कैसे भी करो. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया कैसे किया? ठीक है. मैं एक सम तुमको दूंगा,
यू कैन नोट दिस सम, बट जस्ट 1 सेकेंड, ये वाला सम ट्राई करो. इंस्टेड ऑफ 2 blocks, लेट्स कीप 3 blocks. Okay. Okay, this is let's say some 4 kg. This is let's say some 3 kg. This is some 1 kg. Okay, and they have said कि we have applied a force यहाँ से. Okay, some let's say कुछ 200 newtons लगा दिया. Okay, question is same. Find normal reaction between 4 kg and 3 kg. तो let's say यहाँ पे normal reaction कुछ तो N1 है, वो निकालना है तुमको. And find normal reaction between 3 kg and 1 kg, so N2. Give me the value of N1 and N2. Normal reaction between these two blocks and these two blocks. क्वेश्चन समझ में आया सबको? कर लोगे ना? ट्राई करो. देखते हैं अपना आंसर मैच हो रहा है क्या. तो लेट्स डू द FVD फर्स्ट. अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड? You'll find acceleration first, right? How do you find acceleration? You take it as a single block. Single block ले लो, इसको कितना है ये भाई? 8 kg का. This is 200, correct? So this is acceleration we can find easily. A will be simply 200 upon 8, which happens to be 25. Any questions here? Okay. Now if you look at the FBD of this guy, का FBD बनाइए अगर हम अलग अलग. If I draw the individual FBD, this is 4 kg, this is 3 kg, this is 1 kg, correct? So 3 kg is giving N2. 3 kg ने N2 दिया इसको, ठीक है. तो you get back N2 from here, from 1. Okay, and similarly 4 kg is giving N1 here, so you'll get back N1, है ना. और एक और फोर्स है यहाँ पर x axis पे, this is 200 also, correct? And you can draw the other forces as well, like gravity. Gravity will be यहाँ पे 40, and यहाँ पे let's say this is N dash, normal reaction by the ground on the 4 kg, and यहाँ पे we have 30, this will be N double dash, okay, and this will be 10, and this will be N triple dash. सबके एक्सेलरेशन सेम बस, है ना. इसका भी एक्सेलरेशन A है, इसका भी A है, और इसका भी A है. They are moving together and we know A का वैल्यू है 25. What do you want? You want N2 first? N2 निकाल लेते हैं. ये वाला FBD ले लो. Net force on the x-axis is only N2 is equal to mass into acceleration, which is A, and which comes to 25, है ना. और अगर N1 चाहिए तो ये ले लो या ये ले लो, ठीक है. Let me take this to 200 minus N1 towards the acceleration positive, away from the acceleration negative, is equal to mass into acceleration is 4 into 25. तो N1 की वैल्यू कितनी आई? 100. That's it. आया क्या? आया ना. इजी है. देखो इसका ही थोड़ा सा मतलब सिमिलर प्रॉब्लम है ये, ठीक है. इट्स ऑन द सेम लाइंस. इससे भी एक सम मैं करता हूँ, एक तुम कर लो. ओके, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दे कैन आस्क यू टेंशन, स्ट्रिंग टेंशन. तो यहाँ पे से 2 ब्लॉक्स दिए हमको, ठीक है, और दे आर कनेक्टेड बाय सम स्ट्रिंग. कोई स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया इन दोनों को हमने. ओके, लेट्स से ये कुछ 1 kg है, ये कुछ 2 kg है. एंड देन व्हाट वी आर डूइंग हियर कि हम 2 kg को पुल कर रहे हैं. वी आर पुलिंग 2 kg, लेट्स से विद सम फोर्स ऑफ 30 न्यूटन्स. इससे 30 से खींच रहे हैं इसको, है ना. तो क्या होगा अगर 2 kg खींचेंगे तो क्या होगा? 1 kg भी साथ में आएगा. ओके, बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है और अनब्रेकेबल है, राइट. ठीक है, तो इफ आई पुल दिस गाय, दिस हैज टू कम टुगेदर. दैट मींस 1 और 2 kg साथ में ही मूव होंगे. दे शुड हैव द सेम एक्सेलरेशन. डू यू एग्री और नॉट? ओके, तो इन्होंने यही पूछा, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो इजी है, देखो कैसे करेंगे हम. सेम लॉजिक पहले तो क्या करना है. यू नो दैट सिस्टम इज मूविंग टुगेदर, यू विल फाइंड एक्सेलरेशन फर्स्ट, करेक्ट. दिस इज 3 kg ब्लॉक, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 30 का. एक्सेलरेशन ले लो A, तो A का वैल्यू कितना जाएगा? 30 अपॉन 3, 10. सही है ना. ठीक है. नाउ व्हाट? नाउ यू टेक FBD ऑफ द इंडिविजुअल ब्लॉक्स. उसमें क्या बनेगा देखो, ड्रॉ द FBD. इसको यहाँ खींच रहे हैं तो पुल इज हैपनिंग टुवर्ड्स राइट, तो टेंशन विल एक्ट ऑपोजिट टू पुल. It will act at both the ends in such a way that it's trying to reduce the length of the string. ऐसे ही पढ़ाया था तुमको, है ना. तो ये टेंशन की डायग्राम होगी. और एक्सेलरेशन हमको पता है
इसका भी ए है और इसका भी ए है. इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ वेट आल्सो एंड नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड आल्सो. मैंने बनाया नहीं है, तो कुछ है तो बना सकते हो. ओके, अब क्या करना है, एक बार एक्सेलरेशन मिल गया तो किसी एक एफबीडी को उठा के हम निकाल लेंगे आंसर. ठीक है, तो लेफ्ट से मैं लेफ्ट वाला लेता हूँ. लेफ्ट में कितने, ये ब्लॉक में कितना फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन, दैट इज इक्वल टू मास विच इज 1 इनटू एक्सेलरेशन विच इज 10. आंसर आ गया, टेंशन इज 10 न्यूटन्स. समझ आया क्या? तो यू कैन टेक दिस एफबीडी आल्सो, गेट द सेम आंसर. 30 - t इज इक्वल टू ma करोगे तो वही आंसर आएगा. समझ में आया? ठीक है, इसको कॉपी कर लो फटाफट, ये वाला सम सॉल्व कर दो. 3 ब्लॉक लगा दे तुम्हारे लिए. Something of this sort, they are connected by strings. The ground. Let's say this is some 10 kg. This is 5 kg. This is 2 kg. Okay, and we are pulling it. Let's say by the force of 140 newtons. Okay, यार थोड़ा अच्छा नंबर चाहिए तो 170 मिलता. चलो 340 newtons. Find tension in the strings. इसको T1 ले लो, इसको T2 ले लो. Find T1 T2. Find tension in the strings, both the strings. Okay, करो. So first step is to find acceleration, which is how much? Which is this is 17, isn't it? 17 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे 340 लग रहा है. एक्सेलरेशन a ले लेते हैं, तो a का वैल्यू इज 340 अपॉन 17 विच हैपेंस टू 20. ठीक है, जानबूझ के ऐसे नंबर्स लिए जिससे तुमको कैलकुलेशन में दिमाग ना लगाना पड़े. ठीक है, इफ आई हैव टू ड्रॉ द फोर्सेस, देखो ऐसे बनेगा फोर्स. ठीक है, ये इसको यहाँ खींच रहा है तो T2 शुड बी एक्टिंग लाइक दिस. इट शुड अपोज द पुल. ठीक है, एंड T2 दोनों एंड पे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे भी T2 एक्ट करेगा. ओके, ये यहाँ पे ये जो 10 kg है ये आगे आ रहा है टेंशन की वजह से. 10 kg इज बीइंग पुल्ड बाय टेंशन T1 एंड यहाँ पे भी टेंशन T1 लगना चाहिए बिकॉज इट हैज टू शॉर्टन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, सबका एक्सेलरेशन सेम है. आई कैन ड्रॉ A एंड A. नाउ इफ यू वांट T1 का वैल्यू यू कैन यूज दिस एफबीडी. सिंपली T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 10 into 20 हैपेंस टू बी 200, है ना. और यहाँ पे ले लो ये वाला एफबीडी, तो यहाँ पे 340 माइनस T2 ओके is equal to mass into acceleration which is 20. T2 would be equal to 340 minus 40 happens to be 300. Easy question है. सबको आया ये? आया ना? ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ बोलो. Where? T1. On this block? Yeah. 10 kg पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? तो उस थ्योरी में लिया. सिर्फ और सिर्फ 10 kg पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? It is true that 340 is pulling the entire system, but if I take FBD of just 10 kg block, तो उस पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? पता समझ में आया क्या? ठीक है, समझा तुमको? मैंने तो FBD सिंगल लिया है ना, मतलब ठीक है. 340 is directly acting on 10 क्या? नो इट्स नॉट. समझ में आया? 10 पे डायरेक्टली एक्ट कर रहा है क्या वो? नहीं, इनडायरेक्टली एक्ट कर रहा है. इट इज एक्टिंग थ्रू द स्ट्रिंग. 10 के जो इसने पुल किया, 340 ने पुल किया, स्ट्रिंग ने पुल किया. स्ट्रिंग काट दो तो लेके जाएगा 340 उसको? नहीं ले जाएगा ना. तो ऐसा लग रहा है कि 340 वहां पे एक्ट कर रहा है, पर वो एक्ट कर रहा है क्या वहां पर? स्ट्रिंग एक्ट कर रहा है. व्हाट इज द स्ट्रिंग इज इलास्टिक. देन खींचते रहे यहाँ से, ये स्ट्रेट रहेगा, चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा ना. समझ में आएगा? समझो मतलब. ठीक है, तो यू आर राइट, 340 इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड दैट्स व्हाई वी यूज्ड इट टू गेट द एक्सेलरेशन. And we could do that because the strings are inextensible. I get the point. So reality में 10 kg पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ टेंशन एक्ट कर रहा है बस. तो if I have to isolate 10 kg, I will only draw what? The force which is acting on the 10 kg. And that's the idea of FBD. ठीक है, FBD is a free body diagram of the particular system. सिस्टम का FBD ये है, पूरे सिस्टम का FBD बनाया हमने अगर. ठीक है, तो ये FBD सही है. समझ में आया क्या? ठीक है, अगर मैं किसी एक को पकड़ लूँ अगर, तो फिर ये इंडिविजुअल FBD हो गई. समझ में आया ना? इफ आई वांट टेंशन, ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ इंटरनल फोर्स टू द सिस्टम, तो आई हैव टू आइसोलेट वन ऑफ द ब्लॉक्स टू गेट द आंसर. ठीक है, बट इफ आई वांट द एक्सेलरेशन ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, देन आई कैन टेक देम एज वन सिस्टम एंड गेट द आंसर. वहां पे चलता है. ठीक है, बट यहाँ पे नहीं चलेगा. समझ में आया? श्योर? आ जाओ.
ठीक है, तो गुड डाउट, लेट्स गो अहेड. अभी देखो ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम्स यू कैन क्रिएट इन पुली ब्लॉक आल्सो. ओके, तो विल डू गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स. यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट आई थिंक यू गाइस आर स्मार्ट इनफ टू डू इट. देखो सिंपल प्रॉब्लम्स. ओके, विल डू बेसिक पुली ब्लॉक सिस्टम्स. ओके, तो पुली ब्लॉक में और अच्छे सम बनेंगे व्हेन वी डू कंस्ट्रेंट मोशन, बट फिलहाल जो बेसिक क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं. So we have a system like this, let's say, and it's a pulley which is hanging through a support. Again, the ideal pulley वाला फंडा ले रहे हैं हम लोग. ठीक है, okay, so let's say this is some 10 kg block, this is some 5 kg block. Okay, and they've asked to find the acceleration of the blocks. ठीक है, and tension in the string. ये दो चीज हमको पूछा हुआ है. ठीक है, तो what will happen, जैसे ही सिस्टम छोड़ेगा तो क्या होगा? तो ये 10 kg है, ये थोड़ा हैवी है, isn't it? और ये 5 kg लाइट है, तो क्या होगा? दिस ब्लॉक शुड गो डाउन एंड दिस ब्लॉक शुड गो अप, ऐसे, isn't it? ऐसे होना चाहिए ना, मतलब ये नीचे आना चाहिए और ये ऊपर जाना चाहिए. एग्री? ओके, अब ऐसा होगा क्या कि मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर 10 है तो इसका 20 हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज अंडरस्टैंड, ये स्ट्रिंग जितना नीचे यहाँ से आएगा, इफ इट गोज डाउन बाय x हियर, दिस हैज टू कम अप बाय x, है ना? स्ट्रिंग का लेंथ तो कांस्टेंट है, तो अगर ये x नीचे आया तो ये x ऊपर जाएगा. जितनी स्पीड इसकी उतनी स्पीड इसकी, जितना एक्सेलरेशन इसका उतना एक्सेलरेशन इसका भी. तो बोथ द ब्लॉक शुड हैव सेम एक्सेलरेशन बट ऑपोजिट डायरेक्शन. बट ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा. तो इफ आई हैव टू राइट द एक्सेलरेशन पार्ट, आई कैन से दिस इज a लाइक दिस, दिस इज a लाइक दिस. सही लिखा है मैंने? इफ आई हैव टू ड्रॉ द एक्सेलरेशन, इट मेक्स सेंस टू ड्रॉ लाइक दिस. दिस विल गो डाउन विद सम a एक्सेलरेशन, दिस विल गो अप विद सम a एक्सेलरेशन. बराबर है? ठीक है, और देखो लेट्स डू फोर्सेस वाला पार्ट. ठीक है, क्या फोर्स ऐड कर रहा है 5 kg पे? वेट नीचे की तरफ, दिस इज 50, करेक्ट है ना? वेट तो 50 होगा ना, 5g. ओके, और यहाँ पे 10 100 हो जाएगा, है ना? ओके, और यहाँ पे पुल हो रहा है, इसको हम नीचे खींच रहे हैं, तो टेंशन विल एक्ट अपवर्ड्स हियर, करेक्ट. और इससे यहाँ भी पुल हो रहा है, तो टेंशन विल एक्ट अपवर्ड्स हियर आल्सो. ठीक है, एंड ऑपोजिट एंड्स में इट विल एक्ट लाइक दिस. चमका? तो ये वाले 5 kg ब्लॉक पे कितने फोर्सेस? 2, वेट और टेंशन. समझा क्या? 10 kg में कितना फोर्स है? Again 2, weight and tension. समझ में आया क्या? Any questions here? I will write the equations and then we'll solve simultaneously. Let's write equation for 10 kg first. 10 kg के लिए लिख लेते हैं. चलो 10 kg में देखो x पे तो कोई फोर्स नहीं, जो है सब y पे ही है. ठीक है, and I'll just make it easy for you. Towards the acceleration I take positive, away from the acceleration I take negative. जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, जो एक्सेलरेशन ऑपोजिट में है उसको नेगेटिव ले रहे हैं. ठीक है, तो 100 a के डायरेक्शन में, राइट? तो 100 पॉजिटिव, t नेगेटिव. तो आई लेट 100 माइनस टी, ये होगा मेरा f इज इक्वल टू एम ए. m इज 10, a इज a. समझ आया? समझ में आया सबको? f इक्वल टू एम ए कैसे लगाया यहाँ पर? यहाँ पे बताओ 5 kg में कैसे आएगा? क्या लिखूं, बोलो क्या चाहिए? 50 माइनस टी लिखूं, t माइनस 50 लिखूं? t माइनस 50, a की तरफ वाला पॉजिटिव लेंगे हम. ठीक है, तो t माइनस 50 इज इक्वल टू मास विच इज 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो a ही है. एनी क्वेश्चंस इन दीस टू इक्वेशंस? समझ में आ गया? अब तो सिंपल है, अब जब सब्स्टिट्यूट करो तो वो आंसर आ जाएगा. और आई विल डू इज आई टेक t का वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट हियर. ठीक है, एंड आई गेट दिस, आई गेट 100 माइनस t का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा? 5a प्लस 50 इज इक्वल टू 10a, करेक्ट. एंड देन गेट 100 माइनस 5a माइनस 50 is equal to 10a. okay, this will go that side. This is 50 is equal to 15a. a का वैल्यू क्या मिलेगा? 50 by 15, है ना? which is I think 10 by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. and once you have a का वैल्यू, इसको कोई भी इक्वेशन में डाल दो, तुमको t भी मिल जाएगा, है ना? लेट्स से अगर t का वैल्यू चाहिए, तो t का वैल्यू क्या है? इट इज 50 plus 5a. 50 plus 5a, that would be 50 plus 50 by 3 comes to 200 by 3 न्यूटन्स. समझ आया कैसे किया हमने? हमने क्या किया कि जो FBD बनाया, पहले हमने फोर्सेस बना लिए. ठीक है, एक्सेलरेशन शो कर दिया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. ड्रॉ द फोर्सेस, शो द एक्सेलरेशन, राइट? सेकंड स्टेप क्या है कि एक्स वाई एक्सिस चूज करो. यहाँ पे तो कॉमन सेंस है कि एक्सिस अपना ऐसे नॉर्मल वाला ही रहेगा. ठीक है, देन यू राइट द इक्वेशंस, दैट्स इट. F इज इक्वल टू ma यूज किया हमने, दोनों ही ब्लॉक के लिए अलग अलग. 2 इक्वेशंस मिल गए, 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर लिया. सबको समझ में आया कैसे किया? Observe this and if you have any questions, let me know. ठीक है,
एकदम सिंपल फंडा है, खाली ध्यान क्या रखना है आप लोगों को कि हम F इक्वल टू एम ए में लेफ्ट में फोर्सेस आते हैं, तो ऑल द फोर्सेस ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, एंड राइट में m इंटू ए, दैट्स इट। और उसमें भी मैंने क्या यूज किया है कि जो एक्सेलरेशन की तरफ है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, जो ऑपोजिट में है उसको नेगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे 100 इज टुवर्ड्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव, t इज ऑपोजिट टू इट नेगेटिव, सो यहाँ पे t एक्चुअली a की तरफ है तो इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस एनीवन? इक्वेशन समझ में आ गया अपने को, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन तुम ट्राई करो, ठीक है, ये देख लो अच्छे से एंड सी इफ यू कैन सॉल्व दिस वन। This is a pulley, okay. नंबर ब्लॉक फिल्टर है यहाँ पे, सेम वेट लेते हैं, यहाँ पे 10 kg ले लेते हैं और यहाँ पे 5 kg कर लेते हैं, ओके। तो क्वेश्चन क्या है कि ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा, ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, राइट, ठीक है। वी हैव टू गेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ओके। ऑब्वियसली बोथ द एक्सेलरेशन हैज टू बी सेम बिकॉज़ इफ दिस गोस डाउन बाय x इट हैज टू कम आगे बाय x, ठीक है। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम है, वेलोसिटी भी सेम रहेगा, एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, ये निकालो। और ऑब्वियसली आई वांट टेंशन एज वेल, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो भी निकालना है तुमको। एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे लुक एट दिस गाय, ठीक है, ये जो तुम्हारा 5 kg ब्लॉक है ये फ्लोर के ऊपर है, राइट, इट्स ऑन द सपोर्ट, मतलब ग्राउंड से एक इमेजिन सपोर्ट है, यहाँ पे एक टेबल या ऐसा कुछ इमेजिन कर लो, ओके। तो ये टेबल इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, राइट, ऊपर की तरफ, ओके। आई वांट दैट नॉर्मल रिएक्शन आल्सो, मुझे n की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। NTA निकाल लो, है ना, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और एक्सेलरेशन, ठीक है। आ जाओ करो। देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज 100, वेट पहले बता रहे थे, तो दिस इज वेट 100 और 50। टेंशन, दिस इज बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड्स, टेंशन विल एक्ट इन द अपर डायरेक्शन, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पर T लाइक दिस, एंड दिस इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स राइट बिकॉज ऑफ टेंशन ओनली। तो ये हमारा टेंशन बन गया, सही है क्या? सही है। एंड देन नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे आएगा? सरफेस पे रखा हुआ है इसको, तो N भी आना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन। ये है मेरा फोर्सेस, एक्सेलरेशन यहाँ पे A डाउनवर्ड्स, यहाँ पे A ऐसे टुवर्ड्स राइट। एनी क्वेश्चन एनीवन? समझ में आया सबको? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद 10 kg फर्स्ट। 10 kg को पहले लिपटाते हैं, ओके। 10 kg के लिए व्हाट कैन वी राइट? इसके लिए तो एक ही इक्वेशन बनेगा बिकॉज़ y एक्सिस पे फोर्सेस है, दैट्स इट, और कुछ फोर्स है ही नहीं। तो y पे अगेन टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो 100 को पॉजिटिव लेंगे, t को नेगेटिव लेंगे, 100 माइनस t, दीज आर द फोर्सेस। येलो में जो मार्क किया वो क्या है? फोर्स है, ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 10 इनटू a। चमका? समझ में कैसे क्या? F इज इक्वल टू ma। इक्वेशन देखो मैंने कैसे बनाया, डायग्राम देखो मैंने कैसे बनाया, ठीक है। नेक्स्ट 5 kg को देखो, 5 kg के पास फोर्स सिर्फ x में है कि y में भी है? दोनों में, y में भी फोर्स और x में भी फोर्स है, करेक्ट। इज इट मूविंग ऑन द y एक्सिस और द x एक्सिस? x में ही सिर्फ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन सिर्फ x पे ही है, ठीक है। तो पहले इसका x का इक्वेशन लिख लेते हैं। x की इक्वेशन क्या आएगी इसकी? F इज इक्वल टू ma। F कितना है? सिर्फ और सिर्फ टेंशन इज ऑन द x एक्सिस, तो F लिखा t, ओके। F इज इक्वल टू ma लिखा 5, एक्सेलरेशन ऑन द x इज a, तो 5a। समझ आया क्या? ठीक है, F इज इक्वल टू ma यूज कर रहे हैं, x पे जो एक्सेलरेशन है उसको a लिया है हमने, तो इसलिए उसको ऐसे लिखा। y पे कोई एक्सेलरेशन है क्या? इज इट मूविंग ऑन द y एक्सिस? नो इट इज नॉट, ठीक है। तो विल से y पे एक्सेलरेशन 0 आएगा, तो फोर्स क्या लेंगे? n पॉजिटिव माइनस 50 नेगेटिव इज इक्वल टू 0, यू विल गेट n का वैल्यू एज 50। एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आ रहा है कैसे क्या हमने, ठीक है। तो n तो मिल गया डायरेक्टली 50, ओके। एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करो? टेंशन की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर क्या मिलेगा देखो, इफ आई सब्स्टिट्यूट दैट, तो 100 माइनस t का वैल्यू इज 5a इज इक्वल टू 10a, दैट मींस 15a इज इक्वल टू 100, a इज 100 अपॉन 15 व्हिच इज 220/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड वंस यू गेट द acceleration, tension is very easy, just use this equation, t is equal to what? 5 into a, so that will be 5 times that, 5 तो 100 upon 3, t equal to 5a यूज किया मैंने। Any questions here? सबको समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है, थोड़ा वेरिएशन देता हमें, हल्का फुल्का, और देखो तुमको जम रहा है क्या? ये लो, ठीक है,
10 kg 5 kg, क्वेश्चन इज सेम, NTA, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, एक्सेलरेशन निकालो फटाफट। इफ दिस इज 37 डिग्रीज, करो। So let's do the FBD first. So this is your weight 100, tension T, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, ये है 50, right? Normal reaction would be like this, perpendicular to surface. Acceleration downwards for this guy, this is going like this, let's say. ठीक है, okay? अब करो equations, but you should understand कि यहाँ पे equation तुम आराम से लिख लोगे. What is the equation for this guy? It will be 100 minus T is equal to 10A. सही लिखा है क्या मैंने? Towards the acceleration positive, away from the acceleration negative, 100 minus T is the force, is equal to mass into acceleration. Correct? But when it comes to 5 kg, you must understand कि acceleration ऐसे है हमारा, isn't it? ठीक है, तो this becomes my x-axis and this becomes my y-axis. Correct? ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। हमने किया ये पहले भी, ये हमारा ऐसे हो रहा है, राइट? ये है y और ये है हमारा x. तो कौन सा फोर्स बीच में है? नॉर्मल रिएक्शन तो सही जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन भी सही जगह पे है ना, टेंशन इज आल्सो ऑन द एक्स एक्सिस, इट इज द वेट व्हिच आई हैव टू रिजॉल्व, इजंट इट? ठीक है, इफ दिस इज 37, दिस इज 53 एंड दिस इज 37 टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट, तो दिस ये जो कंपोनेंट आएगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल इन द सेंस ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये जो 50 cos 37 है वो कितना है? 50 cos 37 हाउ मच? 4/5 ना, ठीक है, दिस इज 40 एंड दिस वन इज 30. अब इक्वेशन लिख सकते हैं हम इसका, चलो आ जाओ. ऑन द एक्स एक्सिस हाउ मेनी फोर्सेस? 2, टेंशन एंड 30 टुवर्ड्स द एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, तो T minus 30, दिस इज आवर फोर्स. फोर्स is equal to mass 5 into acceleration A. That's my equation number. If I call this as 1, this would be my 2. Okay. And on the y-axis, force कितना है भाई? 2 फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, और ये जो 40 है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, is equal to MA. M is 5 but A is 0, so I'll get N is equal to 40. That is my one answer. N मिल गया भाई, ठीक है. T निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे कर दो, ठीक है. Take T का वैल्यू from this equation, substitute here. What do you get? 100 माइनस T का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 5A plus 30 is equal to 10A, which will give you how much? It will give you 15A is equal to 70. A is 70 by 15. सही है ना? है ना? जो भी तुमको आगे कैलकुलेशन करना कर सकते हो. कितना आएगा भाई? सही है? Any questions anyone? Did you get this problem? ठीक है, देखो, समझो और ट्राई करो. थोड़ा और वेरिएशन दे दे तुमको. लेट्स से अगर दोनों जगह पे स्लैंडिंग कर दे तो ऐसे कुछ, इसको ले लो तुम 37, इसको ले लो तुम 53, ये ले लो तुम 2 kg, है ना, 2 kg, और यहाँ पे भी 2 kg. ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन सब ढूंढ डालो. NTA. So if I would draw FBD for this guy, left वाला block, so this is 20 like this, correct? यहाँ पे normal reaction, let's say N1, and tension T like this, correct? And same यहाँ पे बना रहे हैं अगर, तो you have normal reaction like this, N2, weight downwards 20 like this, and tension like this. यहाँ पे acceleration is A like this, along the incline ऊपर, this is downwards, ठीक? And then you know that you can resolve these forces. यहाँ पे angle कितना मिलेगा? 37 ना, this will be 37, right? So towards the angle 20 cos 37 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है. What is cos 37? 4/5, तो you get यहाँ पे 16, और away from the angle sign component this will be 12. सेम यहाँ पे भी एंगल 53 मिलने वाला है, and you will get this as 12 and this as 16. Do you agree? Okay, है ना? And once you get this, you can easily write the equations. यहाँ पे N1 कितना मिल रहा है? 16. यहाँ पे N2 कितना मिल रहा है? 12. Correct. And the equation यहाँ पे क्या आएगा? T minus 12 is equal to 2A, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 16 minus T is equal to 2A.
If you solve this, what do you get? A का वैल्यू क्या मिलने आ रहा है? 1 मिलेगा, करेक्ट, एंड यू कैन गेट T. अब इसमें ना लोग शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, देखो what do you make a short trick? Short trick इसमें क्या है कि you can write acceleration in such systems, okay, as net pulling force upon total mass. ऐसे तुम यूज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ठीक है, इस ऊर्जा शुरू से ही कर लेते हैं. आ जाओ, look at this. तो ये वाला ब्लॉक इसको 100 से यहाँ पे खींच रहा है, राइट. दिस इज यहाँ पे 100 पुल हो रहा है और यहाँ पे 50 पुल हो रहा है, राइट. सो मेक इट स्ट्रेट लाइक दिस, ठीक है. तो इधर से 100 खींच रहा है और इधर से 50 खींच रहा है, राइट. तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया? 50 अपॉन नेट वेट कितना है? 15. दैट्स आंसर. देखो वो यह है कि नहीं? नेट पुलिंग फोर्स कितना है भाई यहाँ पर? 100 माइनस 50, राइट, ठीक है. और वेट कितना है टोटल? 15 हो गया, ठीक है. और देख यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 100 से खींच रहा है, ये खींच रहा है क्या? नहीं, ठीक है. तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हुआ? 100. वेट कितना है? 15. दैट्स आंसर. सी, समझ में आया? ठीक है. और देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 100 से खींच रहा है और ये यहाँ से कितना खींच रहा है? 30 से. देखो दिस कॉम्पोनेंट 30, समझा? नेट पुलिंग फोर्स कितना हुआ? 100 माइनस 30, 70. तो A शुड बी 70 बाई टोटल वेट 15. समझ में आ रहा है? ठीक है. और देखो यहाँ पे भी देखो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है. यहाँ से 12 से खींच रहा है, वहां से 16 से खींच रहा है, 16 और 12. नेट पुलिंग फोर्स विल बी 4, टोटल वेट इज आल्सो 4, A is 1. Did you get this? समझा? दिस इज सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम, ठीक है. विल डू बेटर सम्स लेटर, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. समझ में आया क्या? ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर विल टेक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स. आज के लिए इतना काफी है.